Perfect. Good morning. Assalamu alaikum. Welcome to another lesson for A-level media studies. And today we are going to talk about portfolio. That is our project or product. And you can do it in the group of maximum 4 candidates, right? And like we told you earlier, even in the orientation lesson and later on as well, that Cambridge would judge you based upon your final product as well as the journey, and you will keep posting your journey through your blog is like a website. If you don't know, I'm sure you all know that. So where you post things and it gets posted with a certain date there, and things are posted in a chronological order, means date wise the most recent comes on the top and the most oldest stays in the bottom. This is the whole story behind blog or blogging. Before social media, blogging was the next big thing after emails and website. And there were famous blogs like Blogspot, Blogger.com. They were owned by Google, and there were also some other blogs, and still they are in place like WordPress. It's quite famous blogging tool. We would be using. There's also a tool called Weebly. It's famous as well. And Wix, you might have heard about Wix because in YouTube browsing you had been watching a couple of ads for Wix, which is equally good for websites and blogs both. So I would be using Wix as a sample because it's quite user friendly. Others are also good, but I find it easy for my students to grasp it. That's why. So ब्लॉगिंग के थ्रू आप सारे स्टेप्स शेयर करोगे कैम्ब्रिज के साथ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल थिंग. और वी पाकिस्तानीज आर रियली गुड एट शेयरिंग थिंग्स बाय मैग्नीफाइंग इट, यानी कि हमने बढ़ा चढ़ा कर दिखाना है कैम्ब्रिज को, माइनर डिटेल्स तक दिखाना है. इफ यू अपलोड सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइनल प्रोडक्ट लेकिन उसका जर्नी आपने इतनी अच्छी तरीके से शेयर नहीं किया हुआ, यू वोंट गेट अ गुड ग्रेड. बिकॉज कैम्ब्रिज में सस्पेक्ट कि शायद आपने किसी हेल्प से करवाया है, शायद टोटली किसी से करवा लिया है. सो वो सारे स्टेजेस जो हैं विच आई विल ऑब्वियसली शेयर विद यू, और वहाँ पे पोस्ट करने हैं. अच्छा, हमारे पास ऑप्शंस क्या है, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. पहले हाईलाइटेड पार्ट से टच करते हैं, उसके बाद वी विल मूव ऑन टू द ऑप्शंस एंड स्टफ. This is component one and called foundation portfolio. Candidates produce a media product from a choice of two set briefs, यानी दो options में से either a 2 minutes film opening or a magazine. Magazine के minimum 4 sides होंगी, ठीक है. First side would be the cover page, उसका internal part होगा table of contents. Remaining दो parts होंगे. There are 4 side के magazine पे जाते हो, यानी simple folding जैसे होता है. Then the remaining 2 would be a double page spread design, यानी कि एक डिजाइन आप बड़ा सा बनाओगे जो 2 पेजेस पे स्प्रेड होगा, उसमें आपने मटेरियल यानी कंटेंट लिखा होगा. मैगजीन ये है. और फिल्म ओपनिंग, लाइक यू नो, फिल्म के जो पहले 2 मिनट होते हैं जिसमें you get a little idea about the genre. They sometimes introduce few important characters in those first 2 minutes sometimes, and subtitles चल रहे होते हैं कि who is the director, who is the producer, story by whom, and blah blah stuff like that. So my students had been doing film opening for the last many years, because you know जब आप first time media studies में आते तो you want to learn maximum things in the beginning, ठीक है, and things look you know very cool कि अच्छा हम film opening सीखते हैं, कैमरा मूवमेंट, शॉट्स, एंगल्स, लाइटिंग, साउंड, रिकॉर्डिंग, एक्टिंग, यू नो लोकेशंस, ये सब कुछ हम करेंगे. इट्स रियली गुड. और मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स के साथ फिल्म ओपनिंग का रहा है. बट ऑन द अदर हैंड फिल्म ओपनिंग के साथ कुछ चैलेंजेस भी एसोसिएटेड होते हैं. मसलन यू हैव टू मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन क्वाइट ऑफन, बिकॉज आपने शूटिंग करनी है, उसके लिए कास्टिंग नंबर 1 वो मैगजीन के लिए भी होगी. लेकिन मैं आपको कंपैरिजन कर रहा हूँ, कास्टिंग मैगजीन के लिए भी होगी, फिल्म ओपनिंग के लिए भी होगी. लोकेशंस पे जाना होगा दोनों के लिए आपने, ओके. रिहर्सल्स दोनों के लिए करनी होंगी. फिल्म के लिए आपको साउंड का एलिमेंट का ख्याल भी रखना पड़ेगा, जो कि मैगजीन में नहीं होता. मैगजीन इज नॉट अ कंटिन्यूअस थिंग, इट्स अ स्टेशनरी और स्टैटिक थिंग. लेट मी सी इफ समबडी इज इन द वेटिंग एरिया. ओके, देयर इज नोबडी, फाइन. उसके बाद नॉर्मली फिल्म ओपनिंग की शूटिंग एक दिन में कंप्लीट नहीं होती है. इट टेक्स अराउंड 2 to 3 days इन एवरेज. इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, लेकिन 2 से 3 आपको डेज लग जाते हैं. हाँ, इफ़ यू आर एक्सट्रीमली वेल प्लान्ड एंड आपकी सारी फिल्म ओपनिंग एक ही लोकेशन से रिलेटेड है, ठीक है. जैसे कोई इंटेरोगेशन सीन होता है, वो इंटेरोगेशन रूम में होना होता है, ठीक है, और आप अपने कॉलेज में
अपने घर में वो इंटेरोगेशन सीन करना चाहते हो, विच इज नॉट दैट डिफिकल्ट एट ऑल, तो शायद आपका एक दिन में हो सकता है। बट अगर आपके मल्टीपल विजुअल्स है डिपेंडिंग अपॉन द स्टोरी टेलिंग स्टाइल, तो शायद 2 से 3 दिन लग सकते हैं। मेरे स्टूडेंट्स का एवरेज 2 से 3 दिन लग जाते हैं। मैगजीन में ऐसा नहीं है, मैगजीन आप चाहो तो एक दिन में डिफरेंट लोकेशंस पे जाके इफ यू आर वेल प्लान तो कर सकते हो। आई इनकरेज स्टूडेंट्स के पहले वो मॉकअप या प्रैक्टिस एक्टिविटी करें सेम चीज की अपनी अवेलेबल लोकेशन पे, मे बी घर पे और कॉलेज में, एंड वंस द आउटकम इज एज दे एक्सपेक्टेड, सब कुछ ठीक ठीक आया, देन दे कैन मूव ऑन टू लोकेशन। ये भी हो सकता है। सो फिल्म ओपनिंग थोड़ी सी टफ है, लेकिन आपको शूटिंग और सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। A2 में हमने करनी ही शूटिंग है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री हो, देयर आर 2 ऑप्शंस, डॉक्यूमेंट्री, म्यूजिक वीडियो, ट्रेलर और टीजर ऑफ अ फिल्म, एंड नंबर 4 ऑप्शन इज कंप्लीट शॉर्ट फिल्म, ठीक है। तो A2 में हमने शूटिंग सीख ही लेनी है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप AS में मैगजीन करते हो तो आप शूटिंग नहीं सीखोगे, तो मीडिया स्टडीज में आने का फायदा, राइट? फायदा तो हमने सारा लेना है। हमने एडिटिंग सीखनी है, हमने शूटिंग सीखनी है, फोटोग्राफी सीखनी है, लाइटिंग सीखनी है, हमने साउंड से प्ले करना है। ट्रस्ट मी, क्लास की डिस्कशन और यूट्यूब पे बैठ के देखने से कुछ नहीं आता। यू हैव टू डू हैंड्स ऑन थिंग। जब आप किसी चीज को करने की ट्राई करते हो फिर आपको पता चलता है, ठीक है, कि क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। जैसे कि मोबाइल फोन से वीडियोग्राफी करना बहुत आसान काम है, बिकॉज मोबाइल फोन इटसेल्फ मैनेज ऑल द 3 एलिमेंट्स, लाइटिंग को, शटर स्पीड को, अपर्चर को, हर चीज को बेस्ट खुद ही यूटिलाइज कर लेता है, बैलेंस कर लेता है। लेकिन DSLR में आपको यूजुअली सब कुछ खुद करना होता है। I don't want to make this discussion little complicated or off the track, so that's I'm getting back to the point. हमें ब्लॉग बनाना है, ब्लॉग पे सारे स्टेजेस पोस्ट करने हैं। इफ यू आर वर्किंग इन अ ग्रुप ऑफ 4 तो आपकी तकरीबन 70% ब्लॉग पोस्ट सिमिलर होंगी और वो आपस में डिवाइड करोगे, ठीक है। और आपको स्ट्रिक्टली उस एलोकेटेड ड्यूटीज पे फॉलो काम भी करना होगा। इफ योर ग्रुप मेंबर्स वुड कंप्लेन टू मी, जैसे नॉर्मली होता है कि सर वो काम नहीं कर रहा या नहीं कर रही ज्यादा, तो फर्स्टली यू विल फिक्स इट बाय योरसेल्फ, और अदरवाइज आई विल हैव टू टेक सम एक्शन, ठीक है। और मेरा एक्शन जो है बड़ा ट्रिकी एक्शन होता है आमतौर पर। I hope that you are not like that. आप अपने ग्रेड के लिए और अपनी लर्निंग के लिए काम कर रहे हो, so I'm sure you would be enthusiastic. And best part about, like I told you in the first lesson of media studies orientation में बताया था, media studies का 50% grade entirely आपके हाथ में है, because you will get 6 to 8 months to shape your grade through blog and final product. हाँ, जो बाकी 50% है वो आपके 2 घंटे के एग्जाम परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। If you performed well, you are great. If you couldn't perform well due to some, pressure or confuse हो गए या question interpret नहीं कर पाए, God forbid कुछ भी problem बात वक्त हो सकता है ना। So आपका 50% जो project grade है वो आपको बहुत support करेगा। You should target to get B grade minimum in project, जो कि आसान नहीं है पर मुश्किल भी नहीं है। मेरे बहुत से अच्छे स्टूडेंट्स जो हैं, अच्छे स्टूडेंट मैं उनको बोलता हूँ जो मेरी सारी इंस्ट्रक्शंस को बस फॉलो करते हैं, असाइनमेंट्स को खुद से करते हैं और मुझसे प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, चाहे वो इतने पैशनेट ना भी हो, लेकिन दे आर गुड इन फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस एंड डूइंग असाइनमेंट्स इन टाइम। मेरे अच्छे स्टूडेंट्स A's और B's ले जाते हैं, A's भी ले जाते हैं प्रैक्टिकल में, और थ्योरी में इट्स अ टोटल न्यू डिस्कशन, डिफरेंट डिस्कशन। उसके लिए हम ऑलरेडी हमने स्पेंड अ मंथ, तो इट्स ऑल्सो नॉट दैट हार्ड। आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना ग्रेड लेना चाहते हो, उसके लिए कितनी एफर्ट करना चाहते हो। सो मैं आपको ब्लॉग बनाना होगा। आगे क्विकली चलते हैं। The work may be undertaken individually or group, maximum 4 size होगा। Candidate must present the evidence of for assessment individually, whether they have worked in group or individually. Centers must access candidates on an individual basis. आगे मूव करते हैं, मैं ब्लॉग के एलिमेंट पे जाना चाह रहा हूँ। चाहिए फिल्म ओपनिंग, मैगजीन टास्क। अभी मैं आपको इन दोनों के बीच में वो सेग्रीगेशन नहीं करके बताऊंगा। अभी हम सिर्फ ब्लॉग की इंपॉर्टेंस को आज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। हम सेपरेट लेसन रखेंगे फिल्म ओपनिंग के लिए, बिकॉज आई वांट टू गिव यू ओपन चांस एंड ओपन चॉइस कि आप करना क्या चाह रहे हो। इट विल बी गुड फॉर मी, मेरे लिए आसान हो जाता है कि अगर पूरी क्लास ही एक तरह की चीज कर रही हो, या मैगजीन या फिल्म ओपनिंग। लेकिन इसमें भी मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, चेक करना मेरे लिए आसान हो जाता है, ब्लॉग पोस्ट और फॉलोअप करना आसान हो जाता है, असाइनमेंट्स देना आसान हो जाता है। बिकॉज इफ आई मूव स्विच टू, ये मैगजीन से रिलेटेड ब्लॉग पोस्ट है, ठीक है। ये दे वुड बी लाइक 50-60, और ये
फिल्म ओपनिंग से रिलेटेड ब्लॉग पोस्ट हैं, ठीक है। ये 42 मैंने मिनिमम कब की है ये, आई थिंक सो ये 2 साल पहले की हैं। यू नो आप कॉलेज टू कॉलेज, क्लास टू क्लास आप समटाइम्स अपनी क्वालिटी को स्विच करते हो। ये मैंने उनके लिए मिनिमम रखा था कि बेटा इतना कम से कम कर लो, ये गुजारा है, इतना कर लो ताकि कैम्ब्रिज को इशू ना हो, ठीक है। और वो बच्चे जो मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं नहीं सर हमें ए ग्रेड ही लेना है, हमें और ब्लॉग पोस्ट करवाएं ताकि कैम्ब्रिज के एग्जामिनर शॉक हो जाए कि वाह इन्होंने वाकई बहुत काम किया है। उनके लिए आप तकरीबन 10 और ब्लॉग पोस्ट हम ऐड कर लेंगे, अराउंड 50 होंगी जो आपको ब्लॉग पोस्ट इन दीज लाइक 6 मंथ्स रिमेनिंग जो हमारे पास हमने करना होगा, बिकॉज ब्लॉग हमारा आमतौर पर सबमिट हो जाता है फरवरी या मार्च में। या इसलिए बोल रहा हूँ कि समटाइम्स कैम्ब्रिज हमें थोड़ी अर्ली डेट दे देता है क्योंकि वो कॉलेज टू कॉलेज डेट्स दे रहा होता है। हमें एक इंडिविजुअल एग्जामिनर एलोकेट हो जाएगा जो जिसको पता होगा कि सिटी रावी में कौन कौन सा स्टूडेंट है जो मीडिया स्टडीज पढ़ रहा है, और उसको आपके नाम, आपके प्रोजेक्ट के नाम, वो सब कुछ पता होगा। और वो थ्रू आउट द ईयर रैंडमली चेक भी करेगा क्वाइट ऑफन, लेकिन आफ्टर सबमिशन वो फिर 1-2 वीक्स लगा के थॉरली सारा कुछ चेक करके आपको एक फाइनल ग्रेड दे देगा प्रोजेक्ट का, ठीक है। फिर सिर्फ आपकी थ्योरी का एग्जाम रह जाएगा, वो एग्जाम होने के बाद उन दोनों का ग्रेड को कंबाइन करके आप एक फाइनल आपको ग्रेड दे देंगे। सो दिस इज हाउ थिंग्स वुड गो ऑन। तो फिल्म ओपनिंग ये पूरी चेकलिस्ट में आपको टाइम एंड अगेन साथ साथ देता रहूंगा, आपको चंक में से देता रहूंगा, ठीक है। सो इस ब्लॉग का एक्चुअल पर्पस है क्या? द प्रोसेस ऑफ रिसर्च प्लानिंग एंड प्रोडक्शन। कैम्ब्रिज आपको ये नहीं चाहता कि आप जिस जल्दी से रफ सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, यूट्यूब पे जाएं, आइडिया लें और फाइनल प्रोडक्ट बना के सबमिट करवा दें। दैट प्रोडक्ट कैन बी वाओ, बट क्लाइंट के लिए वो वाव हो सकती है, लेकिन वेस्ट में अगर हमने प्रॉपर तरीके से काम करना है तो हम सबसे पहले प्रोसेस ऑफ रिसर्च प्लानिंग एंड बाद में हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। लेकिन हमने ब्लॉग में सब कुछ दिखाना है। उसके बाद एनी रिफाइनमेंट चेंजेस और एडिट्स मेड, आपने सारे उसके वर्जन लगाने हैं। अगर आप मैगजीन बनाते हो, पहले वर्जन बनाया, आपने कहा यार इसमें इंप्रूवमेंट एरियाज है, आपने खुद ही रिजेक्ट कर दिया, लेकिन आपने रिजेक्टेड को भी पोस्ट करना है, आपने उसको इम्प्रूव किया एंड यू थिंक इट्स गुड, आपने वो पोस्ट कर दिया, मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया एंड मैंने आपको चेंजेस सजेस्ट किए, फिर आप थर्ड वर्जन में ना थर्ड वर्जन को भी पोस्ट करोगे, फिर आपको कि दिस इज द फोर्थ एंड फाइनल वर्जन व्हिच इज अप्रूव्ड बाय माय टीचर। लेकिन जो आपके पहले 3 वर्जन भी पोस्टेड होंगे, इससे कैम्ब्रिज को इंप्रेशन मिलेगा कि इस कैंडिडेट ने ट्रांजिशन के साथ, चेंजेस के साथ फाइनल प्रोडक्ट बनाई है, एकदम किसी से सीख के या हेल्प लेके या इंटरनेट से या किसी से बनवा के नहीं पोस्ट कर दिया। व्हाट आई मीन, all individual contributions to any task undertaken as a group, आपने हर चीज खोल खोल के मेंशन करनी है। अगर मैं मैगजीन की एग्जांपल लेता हूँ, 4 लोग कर रहे हैं, एक स्टूडेंट फोटोग्राफी का रिस्पॉन्सिबल हो सकता है कि सारी फोटोग्राफी मैं करूंगा। देखो कवर पेज पे आप एक फोटोग्राफ फाइनल जरूर करोगे, लेकिन आपने उसके अलावा बैकअप के तौर पे कुछ 7-8 और पिक्स भी तो ली होंगी ना, डिफरेंट लोकेशंस पे, डिफरेंट प्रॉप्स के साथ या डिफरेंट एंगल्स के साथ। तो फिर ये फोटोग्राफी होगी। उसके बाद जो इंटरनल पेजेस की फोटोग्राफी है, बिकॉज यू कैन नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम इंटरनेट, प्लेजरिज्म पॉसिबल नहीं है। हर चीज आपने अपनी ओरिजिनल मैगजीन पे पोस्ट करनी है, मैगजीन पे डिजाइनिंग में यूज करनी है, ठीक है। अब मैं सिर्फ मैगजीन की इजीएस्ट एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, दैट्स व्हाई। फिल्म ओपनिंग में तो बहुत और डोमेन्स है जिसमें आप अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हो और क्रेडिट भी ले सकते हो, मैगजीन में भी। अच्छा, एक हो गया फोटोग्राफी, दूसरा हो गया लोकेशंस। लोकेशंस को अरेंज करना, जिसको लोकेशन स्काउट बोलते हैं, स्काउटिंग बोलते हैं। वेस्ट में लोकेशन स्काउट इज अ प्रॉपर जॉब, ठीक है। These are those fun people जो के who love to go and travel and eat at restaurants and make friends, और अपने कॉन्टेक्ट्स बनाते हैं। फिर लोकेशंस फिल्म के लिए जो भी चाहिए हो, रेस्टोरेंट चाहिए, लाइब्रेरी चाहिए, रोड चाहिए, गवर्नमेंट बिल्डिंग चाहिए, पार्क चाहिए, इनके पास ऑन द कॉल ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। सो खैर हम अब इसको इतना प्रोफेशनल लेके जा रहे, जस्ट फिटनेस फॉर द पर्पस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लेके चल रहे हैं, बट स्टिल लोकेशंस भी एक जॉब है, एक इसका भी क्रेडिट मिलता है। उसके बाद कास्टिंग, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम 4 ग्रुप हैं, ग्रुप साइज हो सकता है ना, एक ग्रुप में 4 लोग हो सकते हैं। और मैं आपको क्रेडिट्स बता रहा हूँ कितने ज्यादा, एक फोटोग्राफी हो गया, एक लोकेशन हो गया, थर्ड कास्टिंग, जिसमें आपने अपनी मॉडल, बॉय गर्ल या दोनों, और उसके अलावा, ठीक है, जैसे हम फैशन मैगजीन की बात नहीं करें, स्पोर्ट्स मैगजीन भी हो सकता है, ट्रैवल मैगजीन भी हो सकता है, ठीक है। तो जिन जिन चीजों को आपने कैप्चर करना है, इफ दे आर ह्यूमन बीइंग्स देन वी कैन कॉल देम अ मॉडल। सो मॉडल्स, इनकी कास्टिंग, और उसके अलावा उनसे सपोर्टिव पीपल, यानी कि जो और लोग आप मल्टीपल अगर बीच में लाना चाह रहे हो, तो ये इट्स अ वेरी लेंथी थिंग, कहने में आसान लग रहा है,
बहुत से आपके फ्रेंड्स और दोस्त डिच कर देते हैं आपको, जो कि आपको लगता है कि दे कैन डू थिंग्स लाइक अ मॉडल टू पीपल। अच्छा, उसके बाद 3 चीजें होगी। नंबर 4 वुड बी मेकअप, 5th वुड बी प्रॉप्स एंड एक्सेसरीज, जो सराउंडिंग में आपकी जॉनरा के अकॉर्डिंग यूज होंगी। और उसके बाद 6 इज लाइटिंग, 7th इज एडिटिंग। फोटोग्राफी एक थी, एडिटिंग जो आपने फोटोशॉप में या एडोबी इन डिजाइन में या एडोबी इलस्ट्रेटर में आपने बनाना है इसको, ठीक है। ये 6 तो मैंने आपको बड़े कॉमन एंड मोटे मोटे बड़े बड़े रूल्स बता भी दिए हैं। अब 4 लोग हैं जी, 6 रूल्स आपस में 4 लोग डिवाइड इजीली कर सकते हैं। मसलन क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग इज अ बिग थिंग, तो एक बच्चा तो वो रोल ले ले, ठीक है। बाकी जो 3 बच्चे मैक्सिमम अवर ग्रुप में होते हैं, तो बाकी 3 लोग जो हैं वो बाकी 5 रोल डिवाइड कर लेंगे। यानी कि जो लेट्स से कास्टिंग लेगा, वो क्या है जी, मैं मेकअप भी मैंने अरेंज किया, मेकअप एंड कास्टिंग बाय XYZ, locations, props and lights are managed by and logistics कह लो by this। तो इजीली 4 लोगों में डिवाइड हो गया, ठीक है। 4th वन विद फोटोग्राफी ऑब्वियसली। सो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस के बारे में बात करनी है आपने। देन एविडेंस ऑफ एनी प्रिलिमिनरी एक्सरसाइज, ऑब्वियसली फाइनल प्रोडक्ट से पहले आपने प्रैक्टिस एक्टिविटीज करनी है। मैं आपको जो क्लास असाइनमेंट्स दूंगा फोटोग्राफी की या वीडियो कैप्चर करने की, उसमें मार्क्स तो मिलेंगे आपको, और वो आपके फाइनल ग्रेड में रिफ्लेक्ट भी करेंगे CIs के, जो मेरे कंट्रोल में होगा। बट इसके अलावा आप प्रीलिमिनरी होता है मेन काम से पहले, इनिशियली आपने क्या क्या एक्टिविटीज किया, हम वो भी आपने एविडेंसेस पोस्ट करने हैं। एविडेंसेस का मतलब होता है फाइनल थिंग अलॉन्ग विद बिहाइंड द सीन्स एंड सैंपल एंड डिस्कार्डेड इमेजेस, सब कुछ, ठीक है। अगर आपने बीच में कोई प्रैंक एंड शुगल किया है, वो भी आप बीच में पोस्ट करोगे। एग्जामिनर लाइक यू टू हैव सम फन एज वेल। द फाइनल शॉर्टलिस्टेड प्रोडक्ट क्लियरली लेबल्ड, एंड उसके बाद क्रिएटिव क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, यानी दे आर 4 क्वेश्चंस। आप इसको टेक्सचुअल भी आंसर कर सकते हो, आप इसको ऑडियो जिसे हम पॉडकास्ट बोलते हैं, ऑडियो मैसेज के थ्रू भी पोस्ट कर सकते हो अपने ब्लॉग पे। बट आई रिकमेंड आप वीडियो में आकर एक्सप्लेन करो हर क्वेश्चन को। क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या क्या टेक्नोलॉजीज लर्न की इन योर प्रोजेक्ट, ठीक है। फिर आप उसको जीरो से शुरू करोगे कि मैंने सबसे पहले मूड बोर्ड बनाना सीखा, मैंने मैगजीन्स को रिसर्च करना सीखा, उसके बाद मैंने फोटोशॉप सीखा, उसके बाद मैंने फोटोग्राफी सीखी, उसके बाद मैंने एडिटिंग सीखी, उसके बाद मैंने उसको कलर करेक्शन सीखी, ठीक है। मुझे ब्लॉगिंग पहले लाइफ में नहीं की थी, मैंने ब्लॉगिंग सीखी। मैंने मर्चेंडाइजिंग यानी इसको पोस्ट करना सीखा, मैंने पोल एंड क्वेश्चनर्स बनाने सीखे। चाहे आपने पहले से सीखे होंगे, लेकिन स्टिल यू कैन टॉक अबाउट दैम। हमने बढ़ा चढ़ा के कैम्ब्रिज को बताना है। दे आर वेरी इंटरेस्टेड टू नो योर लर्निंग जर्नी एक्चुअली, ठीक है। और अगर आपने वीडियो बनाई थी लेट्स से एएस में, तो आपको कि हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीखी, रिक्वायरमेंट कैसे होती हैं, लोगों से फीडबैक कैसे लेते हैं, फिर हमने सब स्क्रिप्ट लिखा, स्क्रीन प्ले लिखा, हमने फिल्म एनालिसिस सीखा, उसके बाद हमने मॉक शूट सीखा, लोकेशंस पे कैसे जाते हैं, कास्टिंग कैसे करते हैं, लाइटिंग को कैसे मैनेज करते हैं, साउंड को कैसे डील करते हैं, हमने सब कुछ सीखा। जो एक क्वेश्चन जो है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा, एक होगा आपने रिसर्च एंड प्लानिंग में क्या क्या किया। सो दी विल बी 4 क्वेश्चंस, और आपने अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा के वीडियो में आके एक्सप्लेन करना है। ऑब्वियसली आप हिंट के लिए तौर पे पेपर पे कहीं स्टिकी नोट्स लगा सकते हो अराउंड योर लैपटॉप और मोबाइल फोन, वहां से हिंट लेके बोल सकते हो, आप पेपर पे बुलेट पॉइंट्स लिख सकते हो। मैं आपको कंप्लीट इसकी एक्सरसाइज कराऊंगा पहले, ठीक है। आपको हिंट्स दूंगा, आप पहले मुझे सबमिट कराओगे रिटर्न आंसर, उसमें से मैं करेक्शन करा के फेंकूंगा। नाउ इट इज इंप्रेसिव एंड कैम्ब्रिज वुड नो कि तुमने वाकई बहुत कुछ किया है, ठीक है। तो ये हर चीज यू विल नॉट बी ऑन योर ओन। अच्छा, मेरी आदत है, सॉरी, बट मैं स्पून फीड ज्यादा करता हूँ। देयर आर मेनी टीचर्स, मेरा ज़्यादा लर्निंग अलायंस से बहुत ज़्यादा टच रहा है, क्योंकि मेरे बहुत से एक्स स्टूडेंट्स जो थे वो लर्निंग अलायंस में मीडिया स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, तो दे टेल मी एवरीथिंग। कुछ स्टूडेंट्स मेरे साथ हेल्प से प्रोजेक्ट भी बनाते रहे हैं। सो लर्निंग अलायंस के बारे में मैं खास तौर पे जानता हूँ, और कुछ कैंपसेस भी हैं विच इज़ गुड। टीचर्स जस्ट फैसिलिटेट करते हैं, आपको हिंट देते हैं, आपको फुल रिसर्च करनी होती है, एंड विच इज़ वेरी गुड थिंग। बट आई डोंट नो, आई बिलीव इन लिटिल बिट ऑफ स्पून फीडिंग, ताकि मेरे स्टूडेंट्स ट्रैक पे रहें, टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करें, बिकॉज देयर आर अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। तो एनीवेज हम मिक्स एंड मैच करेंगे। कहीं कहीं पे मैं आपको विदाउट गिविंग एनी आइडिया कहूंगा पहले खुद से इंटरनेट से रिसर्च करो, एंड देयर विल बी केसेस व्हेन आई वुड बी गिविंग यू द एंटायर स्टफ, लाइक सो फार आई हैव बीन गिविंग यू हैंडआउट्स। एंड आपको मैंने बैक एंड फोर्थ कैम्ब्रिज के स्कीम ऑफ वर्क से सिलेबस से कंपेयर करके दिखाया है कि व्हाट एग्जैक्टली दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, राइट।
और मेरे हैंडआउट्स में वही चीजें जो कैम्ब्रिज आपसे एक्सपेक्ट कर रही है, तो एग्जाम में आपको आई थिंक देयर विल बी नो प्रॉब्लम दैट मच। अच्छा, मूविंग ऑन। और इसमें अच्छा, ये क्रिएटिव क्रिटिकल रिफ्लेक्शन की बात हम बाद में करेंगे जब मौका आएगा। सो ब्लॉग इज अ थिंग। Well, अभी I'm glad that this is the last class for this week. आपके पास एक इंटायर वीक होगा ये सोचने के लिए कि आपने, वैसे अभी हम एक क्रूशल डिसीजन नहीं लेंगे बिकॉज आपके अक्टूबर नवंबर भी आ रहे हैं, बट अभी हम जिन बच्चों के आ रहे हैं एक्चुअली, बट उसके वेट में मैं इतना पॉज नहीं कर सकता बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड रह जाएगा। हमने जो नॉर्मली मेरी प्रैक्टिस होती है हर साल, मेरे स्टूडेंट्स विंटर ब्रेक में अपना फाइनल प्रोडक्ट कंप्लीट कर चुके होते हैं, चाहे वो फिल्म ओपनिंग हो चाहे वो मैगजीन हो। एडिटिंग करके फाइनल चीज तैयार होती है ताकि हम जनवरी से सेक्शन 2 को फोकस करें, सेक्शन बी को इनफैक्ट। ठीक है, सो जनवरी एंड फरवरी 2 मंथ हम सेक्शन बी को देते हैं, 2-3 मंथ सेक्शन ए को देते हैं, बाकी टाइम हम ब्लॉगिंग एंड फाइनल प्रोडक्ट की शेपिंग करने में लगा रहे होते हैं। सो आई वॉन्ट बी एबल टू वेट दैट मच, सॉरी जो एग्जाम दे रहे हैं, फिर भी थोड़ा थोड़ा ना असाइनमेंट्स में थोड़ी लिमिटेड रखूंगा, पेस थोड़ी नॉर्मल रखूंगा, लेकिन हमें काम अब स्टार्ट करना पड़ जाएगा। ठीक है, सो कॉलेज इज ऑल्सो गोना गिव मी the final list of students finally taking media studies, because बहुत से students हैं जो group में हैं but they are not taking classes. I don't know whether they have taken it or maybe they have left it. So मुझे within I think a day or two probably list मिल जाएगी। उस लिस्ट को देखते हुए देन आई विल हैव सम फीडबैक सेशन विद यू गाइस कि किस किस की क्या स्पेशलिटी है। कैम्ब्रिज हैज अ लिमिटेशन कि हम मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुप बनाएं, फ्रेंडशिप्स की बेस पे ग्रुप नहीं बनेगा, मिक्स्ड एबिलिटी बनेगा। ठीक है, और वो मेरी उस पे है, मर्जी पे है, हम ग्रुप को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली वो एंड ऑफ अक्टूबर तक चांस होता है हमारे पास ग्रुप चेंज करने का, तो हम पहले ट्राई करेंगे, मैं आपकी कंपैटिबिलिटी देखूंगा। मिक्सबिलिटी का फायदा ये होता है कि हर एक दूसरे से सीख रहा होता है, सारे ट्रस्ट मी, हम सब चाहते हैं मेरे ग्रुप में बेस्ट लोग आए, क्योंकि अगर मुझे काम करना आता है तो मुझे और काम के लोग मिले, मेरा बर्डन डिवाइड हो जाए। बिल्कुल लॉजिकल थॉट है आपकी, बिल्कुल सही थॉट है, बट मैंने सबसे ज्यादा ग्रुप टूटते हुए देखे हैं जिसमें ज्यादा टैलेंटेड लोग होते हैं, बहस होती है, आपस में आर्गुमेंटेशन होती है, और वो कहते हैं मैंने इसका क्रेडिट लेना है, मैंने इसका क्रेडिट लेना है। तो हाँ, जिसमें मिक्सबिलिटी होते हैं, हर एक को पता होता है कि यार मैं इतना काम कर सकता हूँ एट द मोमेंट, और मैंने इतनी स्ट्रगल और करनी है, और मेरे लिए ये क्रेडिट ठीक है, वो इतनी लड़ाई नहीं होती है। और कैम्ब्रिज भी यही चाहता है कि आप मिक्स एबिलिटी ग्रुप्स बनाएं, ताकि जिसको एट द मोमेंट पहले से कुछ आता है, ऑब्वियसली वैसे मैं ये सोचता नहीं हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट यू एवरी ईच ऑफ यू टू लर्न। सब फोटोशॉप मैंने सबको सिखानी है, सिनेमेटोग्राफी मैंने सबको सिखानी है, क्लास एक्टिविटीज होनी है, ऑनलाइन होना है, फिजिकल होना है, असाइनमेंट्स होनी है। ईच ऑफ यू, जिसको पहले से आता है वो थोड़ा रिफाइन हो जाएगा, जिसको पहले कुछ नहीं आता वो स्क्रैच से सीखेगा, क्योंकि पर्पस ये है कि आफ्टर डूइंग योर मीडिया स्टडीज ईच ऑफ यू should be able to design a magazine or a newspaper and do his or her own thing parallel to your university degree later on. And if you are interested into YouTube vlogging or channels or freelancing in video, तो आप वीडियो इंडिपेंडेंटली प्लान, शूट, एडिट एंड प्रोमोट, ये सब काम इंडिपेंडेंटली कर सको, और मे बी विद योर फ्रेंड्स, तो ये सब कुछ पॉसिबल है एफर्ट आप अगर करोगे। बिकॉज होता ही है कि जब आप साथ साथ असाइनमेंट्स कर रहे होते हो, बिकॉज एंड ऑफ द डे हमने CIs में पेयर होना है, जितनी बातें मैंने भी किया लर्निंग वाली वो एक सेपरेट चीज़ है, CIs में हमने पेयर होना है। कॉलेज एंड CIs वुड जज यू बाय योर ग्रेड्स। अगर आप ग्रेड्स के प्रोसेस में यानी असाइनमेंट्स करोगे, असाइनमेंट्स आर ऑल डायरेक्टली रिलेटेड टू योर ग्रेड्स एक्चुअली। जितने भी आपको थ्योरी के असाइनमेंट्स अभी तक दिए हैं मैंने, वो आपके पास पेपर की प्रैक्टिस की है एक्चुअली। तो अगर आप उसमें मुझे सपोर्ट करोगे तो फिर मैं आपको प्रैक्टिकल स्किल्स की तरफ मैं टाइम काफ़ी ज़्यादा निकाल पाऊंगा। और लेकिन अगर आपकी असाइनमेंट्स ही बहुत मुश्किल से रोज की हो रही होंगी तो देन थिंग्स विल बी लिटिल ट्रिकी। एनीवेज, आज भाषण नहीं देना। वेल, वी वर टॉकिंग अबाउट ब्लॉग and we talked a lot about blog actually. So checklist मैंने आपको थोड़ी सी दिखाई है। अभी हम कुछ ऐसी ब्लॉग पोस्ट रखेंगे जो कि अभी मैं मैगजीन को ही सोच के स्टार्ट कराऊंगा मैं आपको, ठीक है, और विद इन लाइक अ वीक और 2 हमारा फाइनल डिसीजन हो जाएगा कि हमने क्या करना है। बिकॉज आने वाले 2 वीक्स में मैं आपको ब्लॉगिंग और ये फाइनल प्रोडक्ट की सिलेक्शन में हेल्प आउट करूंगा, वो हो जाएगी, फिर हम ग्रुप्स की तरफ मूव कर जाएंगे।
बल्कि पहले सॉरी ग्रुप्स बन जाएंगे एंड देन हमारी ब्लॉग पोस्ट जो है या तो मैगजीन की तरफ मूव कर जाएंगी या उसकी तरफ मूव कर जाएंगी. सो आई वांट कि हम अब क्विकली मूव ऑन करें टूवर्ड्स ब्लॉग थिंग. ब्लॉग बनता कैसे है? वैसे मैंने इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग पहले से की हुई है, तो अगर लेसन टाइम एंड हो जाएगा तो वी वुड switch to that video recording. Before that, I want to share with you people blogs of really good students and they are really cool. देखते जरा हम एक मिनट. Here we go. If you look at a magazine, ठीक है, ये इसका होम है. ओके ठीक है. आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन. हम सितंबर 2016 यानी पहली जो ब्लॉग पोस्ट है वहाँ से शुरू करते हैं. मैंने भी आपको जो ब्लॉग पोस्ट देनी है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले क्या है, एक मिनट में शेयरिंग बंद करके दोबारा शेयरिंग करता हूँ फिर आपको नजर आएगा. फर्स्ट पोस्ट वुड बी कैंडिडेट इंट्रोडक्शन. आपने अपना इंट्रोडक्शन, हु आर यू, योर इमेज एंड वाई यू ऑप्टेड मीडिया स्टडीज, और आपने कोशिश करनी है कि अपना हॉबी या पैशन मीडिया स्टडीज रिलेटेड या मीडिया रिलेटेड ही लिख दो, चाहे हम नहीं भी करना चाह रहे. इससे एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन जाता है कि वाओ ही इज अ फिल्म गीक और मीडिया गीक, ही एक्चुअली वांट्स टू practically jump into this domain later on. Second post would be course work set brief, यानी आपके अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कोर्स का इंट्रोडक्शन मीडिया स्टडीज है क्या. इसमें आप CIs की कैम्ब्रिज की जो सिलेबस है दिस वन, इससे बहुत से स्क्रीनशॉट्स लगा सकते हो, लगानी भी चाहिए. उसके बाद इफ यू आर मूविंग टुवर्ड्स मैगजीन देन हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ मैगजीन्स, फिर रिसर्च इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैगजीन्स. ये सारी ब्लॉग पोस्ट है. 2-3 घंटे में आप इंटरनेट पर रिसर्च करते हो तो आपको इजीली काम की चीज मिल जाएगी और आपने कुछ पैराग्राफ्स एंड कुछ सपोर्टिंग इमेजेस अपनी ब्लॉग पे पोस्ट कर देना होता है. टीम एंड ग्रुप इंट्रोडक्शन की एक पोस्ट होगी. उसके बाद रिसर्च इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैगजीन, जॉनर्स, सब जॉनर्स. ये सब कुछ मैं क्लास में पहले आपको एक्टिविटी कराऊंगा, सिखाऊंगा, उसके बाद आपको असाइनमेंट दूंगा, ठीक है. और नॉर्मली एक वीक में मैं 3 से 4 ब्लॉग पोस्ट का कॉम्बिनेशन देता हूँ और इस तरीके से वी विल मूविंग ऑन एंड ऑन और हमारा ब्लॉग अच्छी तरह पॉपुलेट होता रहेगा, प्रेशर नहीं आएगा. सो मूविंग बैक टू स्टूडेंट्स वर्क कि उन्होंने कैसा काम किया है. तो सबसे पहले इस स्टूडेंट ने व्हाट इज मीडिया. अच्छा, ये ए ग्रेडर है जिसको प्रोजेक्ट में ए ग्रेड मिला था. थ्योरी का मुझे नहीं याद, बी था या ए था. ओवरऑल शी गॉट ए ग्रेड इन मीडिया स्टडीज. दैट इज व्हाई ऑब्वियसली मैं आपको दिखा रहा हूँ. अच्छा, अरमान इज वेटिंग इन द ग्रुप फॉर इसका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था. ओके, लेट्स गेट बैक. ओके, सो इस स्टूडेंट ने सबसे पहले मीडिया के बारे में कुछ अच्छा सा लिखा हुआ है कि व्हाट इज मीडिया एज पर हर अंडरस्टैंडिंग. ऑब्वियसली आप इंटरनेट से हेल्प लोगे लेकिन अपने वर्ड्स में रिफ्रेश करोगे. दिस इज वेरी क्रूशियल गाइस. आप प्लेजरिज्म नहीं कर सकते, कॉपी पेस्ट ब्लाइंडली नहीं कर सकते, ठीक है. हाँ, आप कुछ रिसर्च को इम्बेड कर सकते हो, मैं आपको सिखाऊंगा. वेबसाइट को एज इट इज आपने लगा देना अपनी ब्लॉग पोस्ट में, उसको आप क्लेम नहीं करें, लेकिन जब आप समराइज करोगे तो आप अपने वर्ड्स में करोगे कि व्हाट यू लर्न, कि मीडिया है क्या, फिर आपका कोर्स है क्या. यहाँ पे स्टूडेंट ने अपना इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ठीक है, साथ अपनी इमेज एंड सो ऑन. इसके बाद लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पोस्ट. ये उसने सितंबर में 3 ब्लॉग पोस्ट की हैं, ठीक है. डबल पेज स्प्रेड एनालिसिस क्या उसने पोस्ट किया हुआ है कि डबल पेज होता क्या है, बिकॉज मैगजीन की रिक्वायरमेंट होती है कि आपने डबल पेज स्प्रेड डिजाइन जरूर बनाना हुआ है. अब ये देखो, ये जो एक आई होप यू कैन सी, ये जो डिजाइन है ये 2 पेजेस हैं, ओके, बट ये डबल पेज पे स्प्रेड हुआ हुआ है. दिस इज व्हाट दे मीन टू से. उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स का पेज का एनालिसिस किया हुआ है उसने. जैसे जैसे डिफरेंट टीचर डिफरेंट तरीके से देते हैं पोस्ट. फोटोग्राफी के रूल्स जो हैं, नोज रूम, हेड रूम क्या होता है, रूल ऑफ थर्ड क्या होता है, मैंने आपको रूल ऑफ कॉम्पोजिशन में आपको आइडिया दिया हुआ है, हम दोबारा पे इनको टच करेंगे. फिर फोटोग्राफी की एक्टिविटी करनी है आपने, ठीक है. पॉइंट ऑफ व्यू शॉट क्या होती है, मिड शॉट क्या है, ठीक है, क्लोजअप, एक्सट्रीम क्लोजअप, फुल शॉट, मिड शॉट, यू नो सो ऑन, लो एंगल, हाई एंगल, ओवर द शोल्डर शॉट. मैंने आपको बताया हम दोबारा करेंगे इसको, ठीक है. सो इससे क्या इंप्रेशन नहीं जा रहा कि स्टूडेंट ने हैंड्स ऑन काम किया है, करके सीखा है पहले, ठीक है. अगर मैं आपको इसको जस्ट मैं फाइनल प्रोडक्ट दिखाता हूँ ताकि आपको क्यूरियोसिटी जो हो रही है कि सर इसमें खास बात क्या है कि इसको ए ग्रेड मिला है, तो मैं वो चीज़ आपको दिखाता हूँ. सबसे पहले दिस इज हर फाइनल
कवर पेज लुक्स कॉमन, क्योंकि हम इंटरनेट पे देखते हैं हमें ऐसे मैगजीन कवर नजर आते हैं और वो प्रोफेशनल्स बनाते हैं और दैट्स वो अच्छे होते हैं और ये अच्छा है। और सिर्फ एक चीज बना देने से काम नहीं चला, ठीक है, ये उसने कंटेंट्स बनाया है, ये डबल पेज स्प्रेड डिजाइन बनाया है, उसके बाद उसने अपनी पूरी प्लानिंग शेयर किया, मैंने फॉन्ट्स कैसे चूज किया, कैसे क्रॉप किया, ये जो लगाया था यहाँ पे दिस, इसके बाद बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई, ये स्प्रिंकल्स भी उसने इंटरनेट से नहीं लिए, खुद किसी व्हाइट पेपर पे स्प्रेड करके फोटो लिया है, ठीक है। ये कोई बड़ी चीजें नहीं है, ये इजी चीजें होंगी आप लोगों के लिए, कुछ के लिए। मैं इसको ज्यादा एग्जैजरेट करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डिटेल्स दिखाई हैं, देखिए डिटेल्स के मार्क्स हैं, यानी कि जो जर्नी है लर्निंग जर्नी उसके मार्क्स हैं। हम चलते हैं मार्च की पोस्ट में, प्रॉब्लली यहाँ पे उसने लगाया होगा बिहाइंड बीटीएस वगैरह, लोकेशंस और बजटिंग सब कुछ हम भी करेंगे, ठीक है। ये उसने लोकेशंस किस जगह पे किया, ये लोकेशन क्या है, स्मॉल बेकरी डिजर्ट डायरेक्टरी डीएचए फेज 3 में है, वहां जाके शूटिंग की है उनसे परमिशन लेकर, ठीक है। और जो उन्होंने डिजर्ट्स तो बनाया, देखो अक्लमंद है ना, वहाँ पे बने डिजर्ट्स को उसने जस्ट जाके कैप्चर किया है, लोकेशंस वगैरह सारी की होंगी। और पीछे चलते हैं, मैं ना उसका बीटीएस दिखाना चाह रहा हूँ आपको, बिहाइंड द सीन्स, जहाँ भी देखो उसने मैगजीन की प्लानिंग की हुई है। वेर इज की प्रपोजल है मैगजीन का, होल्ड ऑन अ सेक, मे बी अप्रैल में होगा। अब देखो उसने जो आपको प्रोडक्ट दिखाई थी, उसने फोटोशॉप में उसको अपनी एडिटिंग प्रोसेस के थ्रू भी आपको बता रही है, इधर लेयर्स वगैरह भी, हाँ ये देखो वो स्प्रिंकल्स की इमेज ले रही है, जो स्प्रिंकल्स को जगह जगह डिफरेंट तरीके से यूज कर रही है, ठीक है। कैम्ब्रिज इस चीज में इंटरेस्टेड है बिहाइंड द सीन्स में, कि क्या आप एक्चुअली वहां पे थे, क्या आपने खुद किया सब कुछ, ठीक है। एंड योर जर्नी आपने खुद से एक्सप्लेन करना है। कुछ स्टूडेंट्स एक्सप्लेन करने में बहुत कंजूसी करते हैं, आपने ये काम नहीं करना, ठीक है। फिर कलर कैसे उसने बैलेंस किया, सब कुछ हम एक्सप्लोर करेंगे क्लास में, ठीक है। उसने इसको भी सोचा यूज करने का, ठीक है, क्रॉपिंग की, उसको कैसे शेड्स किया, कलर ट्रीटमेंट की, एवरीथिंग इज देयर। और फिर फॉन्ट्स कैसे इंटरनेट से चूज किए, ठीक है, व्हाट वाज द थॉट और रीजन और मोटिव बिहाइंड चूजिंग दिस फॉन्ट, सब कुछ उसने लिखा होगा, लिखना चाहिए, ठीक है। और ये चीज कैसे ली, कहाँ से बनाई, अगर कोई चीज आपने माइनर से इंटरनेट से ली तो यू हैव टू टॉक। अब ये रिजेक्टेड और सिलेक्टेड इमेजेस, उसने ये भी इमेज लिया था, ये भी लिया था, ये भी लिया था, उसने कवर पेज के लिए इसको सिलेक्ट किया है, और भी इमेजेस लिए हुए थे, गेटिंग इट। शूट एनालिसिस, अपनी शूटिंग का खुद से एनालिसिस किया हुआ है कि पहला पेज, पहला इमेज कैसा था, मैंने इसको रिजेक्ट या एक्सेप्ट क्यों किया, इसको मैंने रिजेक्ट क्यों किया, इसमें क्या ब्लेंडर क्या मिस्टेक थी जो आपको लेटर रियलाइज हुई, और प्रोडक्शन लॉग, आपकी प्रोडक्शन की शूटिंग की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आपके ख्याल में क्या थी, अगेन आपके बिहाइंड द सीन्स। आप लोग क्या करोगे, ये तो स्टिल इमेज है, मैं चाहूंगा आप वीडियो किसी अपने फ्रेंड को यार वो अपने मोबाइल फोन पे टाइम लैप्स भी बनाए और वीडियो क्लिप्स भी बनाए। टाइम लैप्स के लिए तो आप ट्राईपॉड पे अपने मोबाइल फोन लगा दो या किसी डेस्क पे बुक के साथ उसको एडजस्ट कर दो कि वो पूरे प्रोसेस को रिकॉर्ड करता रहे। और अगर आपने लेट से 1 आवर शूट किया है तो आपको पता है आपका जो टाइम लैप्स होगा दैट विल बी ऑफ फ्यू सेकेंड्स, ठीक है। 1 आवर का मेरे ख्याल से मुश्किल से 1 मिनट, शायद 1 मिनट होगा, 30 सेकंड 40 सेकंड 50 और मे बी 1 मिनट। तो 1 मिनट वीडियो टाइम लैप्स पोस्ट करना, इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल, लेकिन कैम्ब्रिज के लिए बहुत मीनिंगफुल होगा, कीप इट इन माइंड।